فاضل عباس ترتک کا رہنے والا ہوں اور میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں. پولیس والے ہیں. آج کل چھٹی پہ آیا ہوا ہوں. تو کارتک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ترتک کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. تو ترتک کے جہاں تک مجھے نالج ہے، ترتک ایک بیرن لینڈ ہوا کرتا تھا. یہاں کچھ چشمے ہوتے تھے. تو جب سکندر اعظم جس کو کہتے ہیں، شاید آپ کو جی سکندر اعظم کو کچھ یونیک نام ہے انگلش میں. نہیں آپ انگلش کی کہے کو چنتا کر رہے ہو، انگلش ہو تو گئے. سکندر اعظم کی فوج جب لڑتے آئے، سلک روٹ سے ہوتے ہوئے آئے، تو ان کے فوج کے لڑنے کا طریقہ تھا سر گروپس میں، قبیلے اور خاندان کے لحاظ سے وہ لڑتے ہوئے آتے تھے. جب لڑائی میں شامل ہوتے تھے، وہ کچھ ایسے گروپ ہوتے تھے کہ خاندان جو ہے اپنے مال مویشی، گائے، گھوڑا سب لے کے وہ پھر جنگ کرتے ہوئے، کیپچر کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے تھے. اچھا، تو یہ سلک روٹ کا ایک بہت ہی مہتوپورن حصہ تھا. ترک خود ہی ادھر سے تو سلک روٹ کا تو کوئی ٹچ نہیں تھا، لیکن یہاں سے 5 کلومیٹر آگے چھور بتلا ہے. 5-6 کلومیٹر ہو گیا زیادہ سے زیادہ. ادھر سے تو سلک روٹ کا بالکل مین ہائی وے ٹائپ کا ادھر سے ہے. نوبرا میں بھی ٹچ کرتا ہے سلک روٹ. ہندر میں؟ ہاں جی، ہندر میں نہیں، لیکن سیاچن گلیشیر کے پاس سے ہی ٹچ ہوتا ہے. اچھا، سمور سے ہوتا ہے. سمور تھے اگر تو سلک روٹ کے ہیں. تو سکندر کے فوج اس طرح آتے تھے کہ وہ کسی قبیلے کو، کسی خاندان کو جب کوئی اچھا سا جگہ ان کو پسند آتا تھا، وہ ان کو اریگیٹ کرتے ہوئے، بساتے ہوئے وہ آگے نکل جاتے تھے. جیسے کہ ٹیکسی کو کیپچر کیا، ادھر بسایا ان لوگوں نے، پھر وہ دوسرے جگہ پہ جا کے اس کو بسانا، اس کو کیپچر کرنا، ادھر بس جانا. یہ ان کا ایک طریقہ تھا جنگ بھی کرنا اور آباد بھی ہونا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایک چھور نام کا قبیلے کا ہیڈ، اس کا نام تھا چھور. اچھا، ان کے ایک ریلیجن تھا، اس کو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں برقپا. اچھا، ایک بات بتائیے، سوری ٹو انٹرپٹ، جی، جنگ کر کے کوئی آباد کیسے ہو سکتا ہے؟ جنگ ایسے جگہوں پہ کرتے تھے جہاں ان کو ضرورت پڑتے تھے. ٹھیک ہے جی. جیسے ترتک میں آتے تھے، ان دنوں یہاں 2 یا 3 گھر ہوں گے، ادھر سے 2-4 ویل اکوپڈ آتے تھے، ان کے پاس تیر ہوتے تھے، کمان ہوتے تھے، وہ ان کو نکال دیتے تھے، اس جگہ کو بساتے تھے. اچھا، پھر وہ دوسرے جگہ کے بارے میں سوچتے تھے. اس بیچ میں وہ 20-10 سال گیپ بھی ہو جاتے تھے، لیکن وہ اس طرح اپنے نسل کو آگے بڑھاتے تھے. اچھا، ان کا طریقہ ہی یہی تھا. سکندر اسی لیے تو دنیا پہ قبضہ کر لیا اس نے، اسی ٹیکنیک سے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا لگتا ہے آپ کو، ایک سوال کر سکتا ہوں میں آپ سے؟ جی آپ 2012 دسمبر 21 مائن کیلنڈر کے حساب سے ورلڈ ختم ہونے والا ہے، تو اس کا ترتک سے کوئی لینا دینا؟ اس سال بھی کہا تھا، شاید مارچ اپریل میں، آپ کو یاد ہوگا. کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، the world will end, the world will not end? کامنلی اگر سوچیں تو سائنٹیفکلی یہ لوگ وگیان کے جو ماہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی، کچھ ہونے جا رہے ہیں، لیکن ان کو بھی پورا بھروسہ نہیں کہ کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. لیکن اب ہم تو یہاں ریلیجیس لوگ ہیں، آپ بھی جب انڈیا میں ہیں تو نیچرلی یو آر اے ریلیجیس پرسن، تو ریلیجن کے حساب سے ماننا نہیں ہے. فٹ ہے، بڑھیا ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایک بات بتائیے، یہ مطلب ترتک کے بارے میں جب آپ بتا رہے ہیں، کیا اس کا ایک حصہ پاکستان میں اور ایک حصہ بھارت میں ہے، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ترتک کا ولیج جو ہے اس کا حصہ نہیں، لیکن ترتک جو ہے چھوربت نام کا ایک جگہ، چھوربت، وہی چھور جو میں نے آپ کو کہا تھا. جی، چھوربت مینس اریگیٹ، بت مینس اریگیٹ کو کہتے ہیں. مطلب یہ ایریا وہی ہے جو چھوربت نے اریگیٹ کر کے بسایا. اچھا، چھوربت پاکستان میں 2 گاؤں ہے، چھوار، فرینو، اور انڈیا میں 3 ولیج ہے، تھانگ، ٹیکسی اور ترتک. اچھا. تو یہاں سے پاکستان کتنا دور ہے؟ یہاں سے پاکستان اس سائڈ میں تھنگ کے سائڈ میں جائیں گے آپ کو 15 کلومیٹر تک ملیں گے. اچھا، اس سائڈ میں آپ کو 3-4 کلومیٹر کے دوری پر ہی مل جائیں گے.
अच्छा, यूं समझिए कि तुर्तुक वाले जो है हाँ। सर्टिफिकेट पाने के हकदार है ALC, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के। तो आप ये बताइए, डिप्लोमेसी मेंटेन कैसे कर पाते हैं? दोनों तरफ से बीच में पिसते नहीं है आप लोग? नहीं, हमारे 99 में कुछ लड़के पकड़े गए थे, आपने सुना होगा। हाँ, उनके भी अभी समझ में नहीं आया था कि कौन सी पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक, वो लालिश में आया, जो भी हुआ, उन लोगों ने वेपन अपने पास रखे थे। जी। दूर का नहीं सोचा था उन लोगों ने क्या होगा। मतलब इस तरह कि हम गवर्नमेंट के और आर्मी के डिफेंस के मामले में न आर्मी हमें शामिल करती है और न शायद हमारे लोग भी आर्मी को कोई राय देने जाते हैं। नहीं सुनते। मतलब वही ना, मुझे तो लगता है तुर्तुक तो मॉडल विलेज है आपका, अलची की तरह तो मॉडल विलेज है। मॉडल विलेज नहीं जी, बिल्कुल मॉडल विलेज मतलब गवर्नमेंट ने घोषित नहीं किया है। मॉडल विलेज नेचुरली है, नेचुरली इट इज ए मॉडल विलेज। करेक्ट। लेकिन गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिहाज से और गवर्नमेंट की नजर में, हमारे लेह के एडमिनिस्ट्रेशन के नजर में या उसमें तुर्तुक का कोई वैल्यू में नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप इंडिया के हिस्सेदार हैं कि नहीं है अभी? इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन लगता है आपको है? बिल्कुल। अच्छा, अभी है, लेकिन पहले तो नहीं था। लेकिन कुछ 10 क्लियर बात अगर कहूँ तो 10 हाँ, क्लियर बताइए, बिल्कुल क्लियर बताइए यार, ये कोई 15 पॉलिटिकल साल चीज जो नहीं है। है जब इंडिया ने कैप्चर किया तुर्तुक को, लेकिन शायद तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को भी पता नहीं होगा कि ये कभी हमारा पार्ट बनेगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फिर शिमला एकॉर्ड्स वगैरह हुए जी। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को भी पता चला कि अब ये हमारा पार्ट रहेगा। यहाँ के लोगों को भी पता चला कि हम यहाँ के ही पार्ट रहेंगे। सही बात है। आपसे ज्यादा भारतीय यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। यहाँ पे जिस तरह से फंक्शन देखा मैंने, बहुत अच्छा फंक्शन। इस फंक्शन के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या है कि ये इस पेरेंट्स फंक्शन स्कूल? में सबसे ज्यादा अच्छा ये है कि यहाँ एक कल्चरल म्यूजिक जो है ये लगभग लुप्त होने के कगार पर था, खत्म होने जा रहा था। जी। म्यूजिक बज रहा है यहाँ के लोकल। बल्ती म्यूजिक के बारे में आप कहें तो लेह का म्यूजिक जो है बल्ती म्यूजिक का एक्सट्रैक्शन है। अच्छा, हिस्टोरिकली आपको बता दूं तो जब हमारे राजा शेर अली खान अंचन ने लद्दाख को कैप्चर किया तो लद्दाख के राजा को कैदी बनाया। कैदी बना के जब यहाँ लाए तो कुछ एकार्ड हुआ, कुछ हो गए। तो इधर से यहाँ के शेर गाजी खान जो अभी मैं आपको बता रहे थे, उनकी बेटी से उनकी शादी हो गई। उनकी शादी की जहीज में गए थे यहाँ से मौसीकार लेह को। यहाँ के कल्चर, ये लड़ना शरना जो है वो थोड़ा तेज या आहिस्ता बजाने का फर्क है, नहीं तो सेम ही है। अच्छा, तो कल्चरली आप लद्दाख से एकदम ही इंटीग्रेटेड है ना? हाँ, तो मतलब लद्दाख काफी आपके कल्चर से कई सारी चीजें निकाल के अडॉप्ट किया है। लेकिन लद्दाख एडॉप्ट तो कल्चरली जो है हम सेम ही थे। अच्छा, पहले यहाँ अगर आपको मिलेंगे तो पाकिस्तान के अस्करदों में जो है जी, बुद्धिस्ट रिलीजन का मेन वो हुआ करता था। करेक्ट। मतलब स्ट्रीम ही उधर से ही निकलता था। आजकल अलग हुआ है, फिर उधर इस साइड में मुस्लिम आ गए तो वो चीज खत्म होते गए। और ये तो बहुत ही बढ़िया नेशनल इंटीग्रेशन की स्टोरी है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं जी, शायद उनको हमारे तुर्तुक का कमी होता होगा, क्योंकि ये कल्चरल जो म्यूजिक है और यहाँ जो पोलो का है वो सेंटर तुर्तुक ही हुआ करते थे उन्हीं दिनों में। पोलो सेंटर? पोलो भी इधर ही। यहाँ के हमारे एक प्लेयर ने 9 गोल्स किए हैं सिर्फ हिट पे, तो आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो उन दिनों तुर्तुक में भी काफी, तुर्तुक में ही थे। पोलो का सेंटर, कल्चर का सेंटर, सब कुछ तुर्तुक में ही था। जब कट हुआ होगा तो इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत महरूम हुआ होगा, वो बल्ती लोग। वो जरूर महरूम हुआ होगा। लेकिन आई थिंक अगले साल से तो ये बहुत ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टूरिज्म का इतना अभी बूम हो रहा है तुर्तुक में। टूरिज्म का तो इस साल काफी आया है। पिछले साल ही ये एम आई राइट कि पिछले साल ही आपका सुना होगा कि लेह में इजरायली लोगों का एक म्यूजिक कंसर्ट था जी, जिसमें उनके बहुत बड़े म्यूजिशियन आए थे। लगभग उनको लोग बड़े रेस्पेक्ट भी करते थे। तो लेह में उनका एक म्यूजिक कंसर्ट था, तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला।
तो मैंने उसको तुर्तुक के बारे में बताया कि 71 के वार में इंडिया के पास आ गया, सबसे पहले पाकिस्तान के पास थे, फिर इस तरह हम कटे रहे, एजुकेशनली हर एक चीज में हम पीछे रहे। फिर उसके बाद 10-15 साल के बाद हमें एडॉप्ट किया, फिर Right. हम एडॉप्टेड हो गए। अब इंटीग्रेट होना बाकी है। तो शायद उसका मैसेज इसराइलियों पे अच्छा पड़ा कि 5-6 दिन के बाद उनके ज्यूश हाउस के जो हेड है, पादरी है जो जी। उसने कहा, अब्बास साहब ने अच्छा कहा कि हमारे अबाउट 200 लड़के जो है वॉलंटियरली तुर्तुक घूमने के लिए तैयार हैं। तो जब मैं यहाँ आके पता करता हूँ तो ऑलमोस्ट जो है मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट वर इजरायलीज। तो इस तरह के अच्छा, दिस इज वंडरफुल, क्योंकि इनफैक्ट तेंजिंग कल बता रहा था कि यहाँ पे मैक्सिमम इजरायली टूरिस्ट आते हैं। हाँ, और अब इंडियंस आना शुरू हुए हैं। ये उसी की वजह से अच्छा। हाँ, प्रचार करने का तरीका था, या ओकेजनली उसे कोजन पे मैं पहुंचा तो उनसे दोस्ती थी। मेरा जॉब भी ऐसी है कि हर एक से लाइजान रखना पड़ता है, तो वो तो है। इस तरह। नो, ये तो दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी। अब आप एक बात बताइए कि अब जैसे इंडिया टूरिज्म तुर्तुक को प्रमोट कर रहा जी। है, राइट, कि पिछले साल हुआ, जी तो अब आपको लगता है कि यहाँ पे अभी तक की तो आबादी यहाँ की टच नहीं हुई थी सिविलाइजेशन से, जी तो लोग बड़े अच्छे हैं फिलहाल, जी हाँ, काफी बदलाव आएगा। नेचर के लिहाज से तुर्तुक पुराने जमाने में भी हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुर्तुक जो है उनके नेचर जो फितरत है जी। वो सबसे अच्छे हैं। अखलाकन आपसे बात करेंगे बड़ी तमीज से, जी आपको हर्ट होने वाली बात कभी नहीं करेंगे। जी हाँ। तुर्तुक की जो है वो पूरा माहौल में ही बसी हुई है। बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट टेक्निकली जो है तुर्तुक को, पाकिस्तान को टेक्निकली भी कमी हो जाएंगे हमारी, क्योंकि यहाँ जो तरखान है यहाँ के उस साइड में नहीं होते थे कारपेंटर्स। यहाँ के जो ब्लैक स्मिथ थे, गोल्ड स्मिथ थे, हाँ, यहाँ के जो आपको कहेंगे जूते बनाने वाले, वो भी कहते हैं कि बल्तिस्तान के इलाके में तुर्तुक के मुकाबले में उन दिनों भी कोई नहीं थे। आज भी अगर देखें आप जाएं, हर जगह पत्थर के बर्तन बना रहे हैं उस साइड में, आपने देखा होगा। हाँ, लेकिन इस साल नहीं तरह बना के रहे हैं। 2 भाई काम कर रहे हैं वर्कशॉप खोल के। जी। वो कहीं सीखे नहीं है, वो खुद ही वो गाड़ी खोलते हैं, गाड़ी बनाते हैं, और कितने अच्छे बनाते हैं वो। तो आपने उनकी हाथ की फिनिशिंग देखा होगा, और सब कुछ लोकल तरीके से, कोई मशीन यूज नहीं, कुछ नहीं। तो आप देखिए टेक्निकली तो क्या थिंकिंग्स क्या है, सोचते क्या होंगे, है ना। इंटीग्रेशन अच्छा हो रहा है। आई थिंक अभी अब जिस तरह से मैप में आ रहे हो आप इंडिया के, जी। इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरे ख्याल से। आई थिंक दिस वेरी वंडरफुल, राइट, वट एवर वी लर्न टुडे। आइए इनके साथ जरा एक साथ में, we just make sure that join us. So meet the dude. He's the first policeman we are actually talking to. On, okay, please. Yeah. So Yeah. Feather rocks. great man. Feather rocks. थैंक यू। ये